Hi everyone. So today on Frontline World News, we have a special guest, and it is none other than the larger than life filmmaker, Mr. Hasnain Hyderabadwala. We had the experience, in fact, it was an enriching session where we shared with him in terms of his life experience about cinema, Sushant Singh Rajput, the movies which are working or not working at the theaters, OTT, and much more. So you can probably experience this in this podcast. So, Hasnain Saab, good afternoon, Good afternoon. Good afternoon. and welcome to the Frontline World News podcast. Thank you. Thank And you. we are extremely grateful that you have given your invaluable time for this interview. Probably in terms of the journey that we have lived in all our lives. So Yeah. obviously, going back to the time, so maybe we'll start with how you actually came into the film industry, or what inspired you to probably enter the film industry. Was it some incident, or maybe you can also talk about your background, because I know that you have a history in terms of your entire family being in the Yeah. film industry. But then before that, we would like to know about your personal journey as to how you were drawn towards the Hindi film industry. My entire family, my grandfather, my father, they were into this filmmaking and all. And my grandfather, he migrated from Hyderabad, and basically he was a plot merchant. And जब यहाँ आए वो, तो उनको लगा कि भाई जो बॉलीवुड की चमक दमक देख के, आई एम टॉकिंग अबाउट 1940s एंड ऑल, सो चमक दमक देख के वो एकदम ही ये हो गए, और देन वो यहाँ पर रह गए, एंड वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई फिल्म लाइन की. सो उन्होंने काफ़ी जो पिक्चरें उन्होंने प्रोड्यूस भी की. उन्होंने हरिकन एक्सप्रेस नाम की फिल्म थी, जिसमें फरीदा जलाल जी की माँ, मम्मी जो थी उनकी, वो हीरोइन थी. और हमारे अब्बास अली मुगल साहब है, जो बहुत अच्छे नामी फाइट मास्टर है, जो बॉलीवुड के और बहुत बड़े फाइट मास्टर है, तो उनके फादर जो है हीरो थे. सो वहाँ से जर्नी शुरू होती है, एंड स्लोली ही माइग्रेटेड टू प्रोडक्शन एंड एडिटिंग एंड डिफरेंट फील्ड्स, एंड अल्टीमेटली ही सेटल डाउन टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग. एंड नेक्स्ट जनरेशन माई फादर टुक ओवर, एंड ही कंटिन्यूड इन दिस फील्ड. After that, I came over. But when I came over, my father and my grandfather, they were very much into business and into distributions and those kind of field. So I was not very much keen in business and all. और business समझ भी नहीं आता मुझे. So मेरा technical bent था mind का. So I was always into कि भाई कुछ मेरे को creative करना है, या कुछ technical aspects जिसमें हो वो करना है. So I came into this line, and I started first with Mr. Suraj Prakash ji, very big director of his time, and late Mr. Suraj Prakash ji, because he's no more. So हम उनको डैडी करके बुलाते थे उनको. And he's done like जब फूल खिले, मेहंदी लगे मेरे हाथ, आमने सामने, those kind of films he's done. He reincarnated the career of Mr. Shashi Kapoor ji with Jab Jab Phool Khile. So I started working with him, and his son used to make a lot of trailers and for Hindi films. So I branched out into editing also, because I had a technical bent of mind. So I branched out into editing also, and started editing with him. And I started from the very lower strata, where we learn basically the technical aspects of filmmaking, because a lot of people who join from as an assistant director, or as an intern, they don't have the basic knowledge. Because when I came into the industry as a proper assistant director with Dharmesh Darshan ji in Raja Hindustani, so I that time had the complete knowledge of editing, because we used to edit trailers, and a lot of mixing we used to do, and we used to play with sounds and all. So I had the complete basic knowledge of post production. So that helped me a lot.
बट देन टॉकिंग अबाउट योर करियर, जैसे आपके पिताजी एंड इवन योर ग्रैंडफादर, जी they were in the business side, so जी that was the commercial aspect. कमर्शियल एस्पेक्ट आपका क्रिएटिव बेंट क्रिएटिव ऑफ था, माइंड था. करेक्ट। तो एज अ डायरेक्टर, जैसे आपने बताया शशि कपूर जी, जी तो जब जब फूल खिले जी वहां से शुरुआत हुई जी till, and then we have seen you assisting in terms of Raja जा Hindustani यस। and other movies. तो उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा वो एरा में एंड इन नहीं, दिस एरा? आई डिडंट असिस्ट इन जब जब फूल खिले, Okay. बट एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस मैं आपको बताऊं, जो जिंदगी, जो बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस मेरे साथ हुआ जिंदगी का, कि जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा था, डैडी के साथ, जो इनिशियली स्टार्ट किया काम करना, सो उस टाइम पे एक फिल्म बन रही थी अपना कृष्ण कुमार जी की, जो टी सीरीज़ की जी थी पिक्चर, जो अताउल्ला खान पे जो बनी थी पिक्चर, तो उसमें मैं काम कर रहा था डैडी के साथ। और डैडी की जो पिक्चर थी जब जब फूल खिले वाज इन 60s, आई वाज नॉट बोर्न इन दैट एरा। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग राजा हिंदुस्तानी, द कोइंसिडेंस वाज दैट कि जो फिल्म सूरज प्रकाश जी ने जो बनाई थी जब जब फूल खिले, एंड जो राजा हिंदुस्तानी है, दैट इज आल्सो कॉपी ऑफ जब जब फूल खिले। सो मेरे को लगा कि अरे ये तो कमाल का कोइंसिडेंस था लाइफ का, कि मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था जिसने ओरिजिनल जब जब फूल खिले बनाई, और अब जो मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ धर्मेश दर्शन साहब के साथ, तो उन्होंने राजा हिंदुस्तानी बनी है। तो मतलब इट्स सच अ बिग कोइंसिडेंस कि जो ऑलरेडी जो ओरिजिनल है और जिसका रीमेक बन रहा है, मेरे को दोनों चीज़ें मिली, मतलब दोनों डायरेक्टर के साथ काम करने मिला। सो दिस इज द कोइंसिडेंस व्हिच हैपेंड। Okay. So basically, the director who was there during that time, you were inspired by him, and then that continued with you actually getting involved as an assistant. एज एन असिस्टेंट, जहाँ हाँ, जो राजा हिंदुस्तानी बन रही थी, करेक्ट। तो अगर इन फिल्मों की बात की जाए तो राजा हिंदुस्तानी का आप कुछ बताना चाहेंगे? हाउ वाज द एंटायर शूटिंग इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद आमिर खान एंड करिश्मा कपूर एंड इवन द अदर कास्ट एंड क्रू हु वर देयर? सी, आमिर खान साहब, एवरीवन नोज ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड ऑल, बट जो उनका जो परफेक्शन का जो एक मयार है, जो दायरा हम बोलते हैं, वो इतना परफेक्ट है कि मतलब आप जो है कहीं आप कुछ चीज़ को मिस नहीं कर सकते, बिकॉज उनका अगर टाइमिंग देख लो, उनका एक स्क्रिप्ट में इन्वॉल्वमेंट देख लो, और जिस तरह से वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और जिस तरह से वो, ही इज़ अ वेरी बिग हेल्प टू अ डायरेक्टर। बिकॉज अगर एक डायरेक्टर मान ले कि आमिर खान साहब मेरे साथ है एंड मुझे उनको इन्वॉल्व करना है, तो ही इज़ अ वेरी बिग एसेट। बट अगर कोई सोच रहा है कि नहीं यार ये तो इंटरफेयर कर रहा है, यार मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो देन आई थिंक उसका लॉस है उस डायरेक्टर का, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड सच अ ग्रेट एक्टर हु इज सो मच इन्वॉल्व इन हिज वर्क। यहाँ तक कि जब हम लोग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो है, जब अगर हीरो जो होता है उसके लाइंस पे अगर कोई क्यू देना है, और अगर समझो कोई जूनियर आर्टिस्ट है या क्राउड है या कोई दूसरे आर्टिस्ट खड़े हैं सामने, तो यूजुअली क्या करते हैं, हीरो अपना शॉट दिए और चले जाते हैं, और फिर असिस्टेंट बोलता है तू क्यू दे देना यार करके, और हम लोग क्यूज दे देते हैं उनको और वो अपना रिएक्शन देते। लेकिन आमिर खान साहब ऐसा नहीं करता। आमिर खान साहब जो है खुद खड़े रह के, खुद इवन जो जूनियर आर्टिस्ट को इंस्ट्रक्ट करते कि मैं ये बोल रहा हूँ तो आप इस तरह से करो, और यहाँ तक कि वो जो उन्होंने एक्टिंग की है कैमरे के सामने, वो परफॉर्म करके कैमरे के पीछे कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन जो है जूनियर आर्टिस्ट या जो भी को एक्टर्स जो दे रहे हैं। सो आई थिंक इतना इन्वॉल्वमेंट जो होना, मतलब आई थिंक इट्स अ बून। सो इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विद खान साहब, एंड बाकी जो स्टार कास्ट है, करिश्मा, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कोऑपरेटिव, एंड शी वॉज एट अ पीक ऑफ अ करियर। मतलब जो लाइन्स उनकी गोविंदा साहब के साथ जो फिल्में हिट हो रही थी, बैक टू बैक ठीक हो रही थी, एंड शी वॉज मोस्ट सॉर्ट ऑफ आफ्टर हीरोइन इन बॉलीवुड एट दैट टाइम, मतलब जो चल रहा था। सो बाकी जो कास्ट था, वेरी ब्यूटीफुल कास्ट। जॉनी लीवर साहब जो है वो है, नवनीत निशान है, मरहूम वीरू कृष्ण साहब है, एंड कुणाल खेमू था उस टाइम पे, ही वॉज अ स्मॉल बॉय दैट टाइम। सो वो भी इन्वॉल्व था उसमें, एंड एवरी आर्टिस्ट, टिकू तलसानिया ले लीजिए आप, फरीदा जलाल जी ले लीजिए आप, एवरी आर्टिस्ट वॉज सो इन्वॉल्व कि इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू, और आप प्लेजर बोल तो पता नहीं क्या, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में कि मतलब इतने इन्वॉल्व है आर्टिस्ट, इतने इन्वॉल्व है अपने कैरेक्टर के अंदर, कि हर एक आदमी जो है कुछ ना कुछ एक
चीज़ अच्छा करना चाह रहा है या हेल्प करना चाह रहा है। सो एवरीवन वाज सुपर्ब एट हिज बेस्ट। मतलब ये जो पिक्चर जो बनी है, मतलब हर एक आदमी ने, हर एक आर्टिस्ट ने, हर एक जो टेक्नीशियन ने, WB राव साहब जो मरहूम जो कैमरामैन थे इसके, हर एक आदमी ने जो है इसमें 100% दिया है, तब जाके ये फिल्म जो है राजा हिंदुस्तानी बनी है। So during that period, you worked with various other directors also Yeah. by assisting them. Yeah. So what has been your most memorable experience working with all these directors? See, most memorable to I can say my film was Raja Hindustani only because that was my very first film, and I was completely new in the line of direction and all, because editing I was there, in post and everything. So in direction I was completely new. So that was a very big experience for me, and working with Khan Saab, and that will be a very memorable journey all my life. मतलब आज तक when I see Raja Hindustani, whenever it comes on a TV और कोई गाना चल गया या कुछ ऐसा चल, तो I still remember each and every frame के ये फ्रेम में ऐसा किया था, ये शॉट में ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था. So all that memory becomes so fresh. It's 1996 it was released, but still that memory is so fresh in the mind. It feels like ये कल ही हुआ था, ये अभी 2 महीने पहले शूटिंग की थी हम लोग ने. So ये तो मेमोरी से जाएगी नहीं फिल्म मेरे. And maybe a line about those directors that you worked with. I've worked with apart from धर्मेश दर्शन जी, I've worked with सुनील दर्शन साहब जो उनके भाई हैं. एक very brief period I've worked with him in Ajay. Then Kaval Sharma ji I've worked with Bhatt साहब, महेश भट्ट साहब. I've worked with Vikram Bhatt ji. So these are the directors I've worked with. Exactly. True. And at this juncture where Bollywood is or the Hindi film industry is mourning the loss of actor and filmmaker Manoj Kumar ji. जी. So his kind of cinema, Yeah. or the genre that जो उनकी स्पेशलिटी थी, जी. और पेट्रियोटिज्म को एक अलग ही वे में प्रेजेंट किया है पूरे हाँ. विश्व में. Correct. So what do you have to say about the great मनोज कुमार जी? मनोज कुमार साहब की जितनी तारीफ करो उतनी कम है. उतनी उनकी जो ग्रेटनेस है वो हम एक फ्रेम में या एक मेरे जो शब्दों में हम बयान ही नहीं कर सकते. मतलब जिस तरह के वो क्राफ्टमैन्स थे, जिस तरह के टेक्नीशियन थे, वो ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. बिकॉज जो आज भी आप देखो क्रांति वगैरह में जो उन्होंने जो शॉट्स डिज़ाइन किए हैं, जो सिंगल शॉट्स डिज़ाइन, आज भी लोग जो है वो एग्जांपल देते कि अरे यार मनोज जी का शॉट ले लो. जो बड़ा शॉट लगाते थे ना मनोज जी, पूरा यहाँ से कोई कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको छोड़ा, इसको पकड़ लिया. सो आज भी हम लोग उसका एग्जाम्पल देते कि अरे मनोज जी जैसे शॉट डिज़ाइन करते थे ना, वैसा डिज़ाइन करो कोई शॉट. और आज भी हमारे जहन में ऐसा होता है, कभी ना कभी जो होता है कि एक ऐसा कोई सीन आ जाता है, लगता है कि अरे यार ये मनोज जी के स्टाइल में कुछ शूट करना चाहिए. सो ही इज़ अ लेजेंड. तो वो तो मतलब एक जो इंडस्ट्री है हमारी, जो फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ के चले गए वो. एंड लिखने में एक्सपर्ट, मतलब राइटिंग में उनकी कोई पकड़ नहीं है किसी की. एंड कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता राइटिंग के अंदर. एंड द थॉट प्रोसेस है उनका, और जो जिस तरह से उनका पेट्रियोटिज्म था, जो जिस तरह से पेट्रियोटिज्म लाते थे फिल्मों में. बिकॉज क्या था, उन्होंने पेट्रियोटिज्म एक बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इमोशनल तरीके से फिल्मों में लेके आए. ठूसा नहीं है उन्होंने पेट्रियोटिज्म. उन्होंने इतना स्मूथली फ्लो करता है पेट्रियोटिज्म कि आप जब पिक्चर देखते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे यार काश मैं होता यहाँ पर, मैं अपनी जान दे देता कंट्री के लिए. सो इस तरह का जो है उनका एक ऑरा था, और उनका राइटिंग का क्राफ्ट था, और उनका एक डायरेक्शन था, और इज लाजवाब. तो पेट्रियोटिज्म की बात निकली है तो पार्टीशन की भी बात होगी जी. सो वी हैड द पार्टीशन इन 1947 जी. तो जो मुस्लिम्स यहाँ रह गए इंडिया में जी. और बाकी जो पाकिस्तान चले गए, हाँ. तो आज जो हिंदू मुस्लिम्स का यहाँ पर सिनेरियो है जी. और जो मुस्लिम्स इंडिया के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं जी. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स हु आर स्टेइंग इन इंडिया? सी मुस्लिम्स जो है, जो एक चीज को पर इसमें शायद मैं क्यों देना चाहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ जो मे बी पॉलिटिकल पार्टीज आज अपना रोटी सेक रहे जी. यूजिंग दिस, जी. व्हिच इज नॉट राइट. जी. बट देन आम आदमी and especially filmmakers and people who are educated and जी. who are grounded
जी और जो ये बात की नज़ाकत को समझते हैं, जी सो दे वुड ऑब्वियसली एग्री कि जो भी हो रहा है ये सही नहीं। जी जो 1947 में जो पार्टीशन हो गया वो हो गया। उसके बाद जो मुस्लिम्स यहाँ पर रह गए वो यहीं रह गए, जो चले गए, वहाँ से जो हिंदू भाई हैं जो यहाँ पर आना चाहते थे वो यहाँ आ गए, जो वहाँ रहना चाहते थे वहाँ रह गए। तो ये जैसे मनोज जो कुमार जी की भी पैदाइश हाँ, पाकिस्तान में ही हुई पाकिस्तान की थी, थी, राज अब्बोटाबाद कपूर साहब में। की पैदाइश हाँ, पाकिस्तान की थी, दिलीप साहब की पैदाइश पाकिस्तान बिल्कुल। की थी। सो बहुत सारे लोग जो यहाँ माइग्रेट करके आ गए तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि नहीं, हमको जो है एक सेक्युलर कंट्री में जो है हमको रहना है। यस, हमको ऐसा कोई जगह पर नहीं रहना है जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, जहाँ पर सेक्युलरिज्म ना हो। सो उन्होंने अपना एक चूज किया एक कि भाई मुझे इस जगह पर रहना है जहाँ सेक्युलरिज्म है, जहाँ पर एक हर एक आदमी को अपने मज़हब को फॉलो करने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सो उन्होंने सोच के यहाँ पर आया। तो आई थिंक उनका जो ये डिसीजन जो है रिस्पेक्ट किया है लोगों ने, रिस्पेक्ट करेंगे और रिस्पेक्ट करते रहेंगे। और आफ्टर 47 तो ये प्रॉब्लम हुई नहीं। इसके बाद जो था वो तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो या कुछ पॉलिटिशियंस है या जो नेता है जो अपनी रोटी सेकने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। बट आई थिंक पीपल आर वेरी स्मार्ट बिकॉज क्या है कि जो लोग हैं वो जानते हैं कि इनका अल्टीमेट जो मोटिव है वो क्या है। सो आई डोंट थिंक सो दे विल फॉल इनटू दिस ट्रैप। और बाकी मुसलमान जो है वो तो उसका एक ये है कॉल है कि भाई आप जिस वतन में रह रहे हो वही तुम्हारा ईमान है, वही तुम्हारा जो मजहब है, वही तुम्हारा जो तुम्हारी सरजमीन है वो। और मुसलमान जो है वो 5 टाइम सजदा करते और ज़मीन को चूमते जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं। तो इससे ज़्यादा पेट्रियटिज्म क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सर, वही बहुत अच्छा चीज़ आपने कहा। तो इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों को गुमराह किया जाता है? अभी गुमराह करने वालों को तो अल्लाह बचाए, क्योंकि गुमराह तो शैतान भी करता है। तो अब ये है कि जो लोग हैं हमारे जो जैसा अभी मैं आपको एक इंसिडेंट जो मैंने नेट पर देखा था कि जो ईद की नमाज पढ़ के जो है जयपुर का था, शायद राजस्थान का था, मुस्लिम्स पूरा जो क्राउड निकले और हमारे हिंदू भाइयों ने ऊपर से फूल बरसाए। सो ये नफरत तो दिल में है नहीं ना सर। दिवाली हम भी मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम मेरा मैसेज जो है हर जगह जाता है, दिवाली पे जाता है, रामनवमी पे गया, हमारा जो होली पे जाता है, उनका मैसेज मेरे को आता है। सबसे पहले मैं फ़ोन ऑन करूँगा ईद के दिन, नमाज़ पढ़ के खुद पे आता हूँ तो मेरे हिंदू भाइयों का मैसेज होता है ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अगर इतनी नफरत होती तो मुझे ईद मुबारक क्यों करते हो? बिल्कुल। एंड टॉकिंग अबाउट योर फिल्मोग्राफी जी इन टर्म्स ऑफ जो आपने भट्ट साहब के साथ या भट्ट कैंप में काम किया है जी विद मुकेश भट्ट एंड द भट्ट कैंप, महेश जी एंड सो द मूवीज जैसे द किलर हो गई, द ट्रेन, जी जशन एंड यारब, जी तो कुछ आप बताना चाहेंगे अबाउट दीज मूवीज, योर एक्सपीरियंस? सी आई हैव बीन associated with Bhatt Camp for quite a long time। मतलब जब मैं एडिट कर रहा था, जब सूरज प्रकाश जी के साथ जो ट्रेलर्स वगैरह बनाते थे उनके सन बॉबी के साथ, तो हम लोग जो है एडिटिंग उस टाइम पे तो स्टीनबैग पे एडिट होता था। तो मुकेश जी के पास स्टीनबैग हुआ करता था एक, जो नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में था। तो दैट वी यूज्ड टू यूज़ इट, वी यूज्ड टू हायर इट, और वहाँ हायर करके हम लोग ट्रेलर वगैरह बनाया करते थे। सो भट्ट साहब यूज्ड टू रेगुलरली काउंट बिकॉज उनकी लाइन से बैक टू बैक फिल्में चलती थी उस टाइम पे। दिल के मानता नहीं, सड़क, आशिकी, लाइन से उस टाइम 3 फिल्में, 4 फिल्में चल रही थी उनकी। सो ही यूज्ड टू विजिट देयर एंड हमारा भी काम चल रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा काम चल रहा होता था और भट्ट साहब आते थे। एंड भट्ट साहब का ऐसा था कि बहुत लिमिटेड टाइम होता था कि भाई मेरे को 2 घंटे एडिट करना है, मेरे को भागना है, बिकॉज सो वो आते थे और वो रिक्वेस्ट करते थे, अरे यार मेरे को 2 घंटे के लिए दो। एंड वी यूज्ड टू ऑब्लाइज बिकॉज ऑफ कोर्स भट्ट साहब को कौन मना कर सकता है। एंड सो लाइक दैट हाई हेलो शुरू हुआ भट्ट साहब से, एंड ही स्टार्टेड नोइंग मी। एंड बिकॉज ऑफ माई फादर ऑल्सो, बिकॉज माई फादर यूज टू डू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देम एंड ऑल। सो पता था कि हाँ भाई शबीर भाई का लड़का है। सो वैसे भी हमारे एक अच्छा हाई हेलो था, ये था। So that's how I started knowing Bhatt Sahab, and then I started assisting him in the film Tamanna, and वहाँ से फिर I came into Bhatt Camp, and विक्रम जी जो है जो वहाँ पर थे एज ए डायरेक्टर, जो पहले गुलाम कर चुके थे भट्ट साहब के साथ, और so I started assisting him, and फिर वहाँ काफ़ी पिक्चरें की मैंने भट्ट कैंप के अंदर उनके साथ पूरी। So in terms of working with Mahesh Bhatt, what has been your most, you can say,
fulfilling experience or something which you learned from Bhatt Sahab, which has been a life changing experience? सी भट्ट साहब से जितना सीखो उतना कम है. आप जब बैठते हो भट्ट साहब के साथ कुछ ना कुछ सीख के उठते हो. ऐसा कुछ नहीं कि मतलब किसी ने ऐसा नहीं कि आपने अपना टाइम वेस्ट करके उठे भट्ट साहब के साथ. सो आप जब भी भट्ट साहब के साथ आप चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे आप 2 घंटा बैठो, कुछ ना कुछ आप सीख के उठोगे. सो भट्ट साहब के साथ तो सीखना मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. इट्स लाइक जो समुंदर में से आप जितना लोटा पानी बटोर सकते हो बटोर लो करके. बट बहुत सारी चीज़ें जो भट्ट साहब की है, एक क्वालिटी जो है, एक तो बड़े बेबाक है वो, और बड़ा ब्लंट जो है उनका एक तरीका है बोलने का, और इवन जो उनका एटीट्यूड है वो बड़ा ही वैगाबॉन्ड टाइप का एक एटीट्यूड है उनका एक. सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ भट्ट साहब जो है, एक अलग ही है उनका एक ऑरा, और उनका एक जो. तो इस वक्त मैं ये भी आपको पूछना चाहूंगा कि बिकॉज इमरान हाशमी हैज आल्सो फीचर्ड इन टू ऑफ दोस मूवीज व्हिच यू हैव डायरेक्टेड, व्हिच वाज द किलर एंड द ट्रेन. तो थोड़ा इमरान हाशमी जी के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? इमरान हाशमी इनिशियली जब भट्ट कैम्प में आया था तो ही इज रिलेटेड टू भट्ट साहब. एवरीवन नोज हाउ, बिकॉज भट्ट साहब्स मदर एंड इमरान's दादी, they are real sisters, so they are kind of a first cousins. So जब इमरान आया था, he was completely lost. He didn't knew what he wanted to do. Basically he wanted to do graphics and he wanted to do something else. And he was like कि उनकी मासी ने बोला था कि यार इसको रखो, कुछ पता नहीं क्या करना है, because his मासी was very inclined कि ये फिल्मों में कुछ करे. But इमरान का ऐसा कोई inclination था ही नहीं. He was like अरे मैं graphics करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा. And he used to attend classes also in graphics designing and everything. And साथ साथ में वो ऑफिस भी आता था, भट्ट साहब के साथ मिलता था ये. And suddenly one fine day, I don't know what inspired भट्ट साहब, और उन्होंने भट्ट साहब ने क्या देखा इमरान में, and he said कि तो हीरो बनेगा करके. And he said भट्ट साहब यार ये बोलता है नहीं कुछ नहीं. And from that day he said कि तू आजा कल से, अभी तू असिस्ट करना चालू कर दे. And विक्रम जी that time हम लोग कर रहे थे कसूर फिल्म. So he started assisting on कसूर फिल्म. So जब I was an associate with विक्रम जी, so वो हमारे अप्रेंटिस की तरह था वो. एंड उसको मतलब मिनियल जॉब्स देते थे कि काम कर बैठ के कंटिन्यूटी शीट लिखो, ये लिखो, जाओ एक्टर को बुला के लेके आओ. सो दैट वे ही स्टार्टेड इनिशियली, बट ही हैड नो इंक्लिनेशन कि मैं ऐसा हीरो बनूंगा, या एक होता ना कि अंदर से कि भाई ये मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा या ऐसा, बट ऐसा कुछ उससे था नहीं. तो स्लो एंड स्टडीली जो है चीज़ें होती रही, और धीरे 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 फिल्में हिट होती रही, गाने उसके हिट होते रहे, धीरे 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 ग्रोस. राइट, बिकॉज वो गाने मोस्टली गाने थे एंड अदर सिंगर्स एज वेल, सो दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टुवर्ड्स इमरान हाशमी सक्सेस. एंड जो सीरियल किसर का टैग लगा उनका जी, वो तो एक दौर था कि जब लोग उनकी पिक्चर देखने के लिए करेक्ट इंतजार करते थे जी. एंड नाउ रिसेंटली अभी जस्ट एक दिन पहले उनका डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरा जो ग्राउंड जीरो, जिसमें वो प्ले कर रहे हैं BSF कमांडर का रोल, तो people have always loved him for that kind of cinema, and I think this movie trailer also is creating waves. जी, सी इमरान का क्या था कि जो सीरियल किलर का जो किसर का जो टैग था उसका, वो एक्चुअली वो गलती से बाय एरर पड़ गया हुआ है. इट वाज नॉट प्लान्ड एक्चुअली. मेरे ख्याल से आपने बबलू पचीसिया जी जो है हमारे जो प्रोड्यूसर है, उनकी वो पिक्चर कर रहा था एक, तो उसमें कोई कॉस्ट्यूम वगैरह कोई चेंज था उसके अंदर, तो उस पर उसके पास कोई टी शर्ट नहीं था. तो उसका बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है विशाल माडकर करके, तो वो साथ में था, असिस्ट कर रहा था उस टाइम पे बबलू जी की पिक्चर में. तो उसने एक टी शर्ट पहना हुआ था सीरियल किसर करके. ऐसा बोला यार यही ऐसी एक छोटा सा चेंज है, कट है, उसके अंदर मैं पहन लूँगा. उसने वो टी शर्ट पहना, उसके पीछे लिखा था सीरियल किसर. अब उसको यही नहीं पता था कि ये टैग जो मैंने पहन लिया है गलती से, ये मेरी ज़िंदगी में चिपक जाएगा मेरे को. सो वो बाय एरर चिपका है वो. और मतलब इसके लिए नहीं था कि, बिकॉज अगर आप देखने जाओ तो किलर जो मैंने फिल्म बनाई उसमें कोई किस नहीं है, इसमें कोई किसिंग सीन ही नहीं है उसका. सो बिकॉज उस टाइम पे ही वॉज वेरी ऑफेंडेड, करे यार ये
यू नो पीपल आर टेकन अबैक, अरे यार ऐसा कैसा यार, मतलब सीरियल किसर, मतलब इट वाज लाइक अरे यार ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मतलब वो टैग एक अजीब टैग था वो. सो नो वन वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद दैट टैग, अरे सीरियल किसर करके. सो देन स्लोली थिंग्स स्टार्टेड कमिंग टू टर्म्स एंड ही एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है, लग गया तो लग गया, अभी क्या करो इसमें. राइट. एंड जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी जी फिल्म इंडस्ट्री में, सुशांत सिंह राजपूत, जी, and we lost one of the greatest superheroes, correct, we can say, or the superstars. Yeah. He was already maybe the earliest superstar, Yeah. and could have been the next big thing. correct. तो what do you feel कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? See, actually what transpired with him I don't know, because वो तो जो था I don't know, जो cases जो चल रहे थे वगैरह, and बाकी he was a very good actor, because जब मैं फिल्म बना रहा था अपनी यारब, so my first choice was सुशांत सिंह राजपूत, and I had gone to meet him on the sets. बालाजी का एक सेट है क्लिक निक्सन करके, वहाँ पर उसका सेट लगा हुआ था. आई नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द सीरियल, वो जो कुछ चौल का सेटिंग था पूरा, एंड अंकिता लोखंडी भी उनके साथ को स्टार थी. सो आई हैड गॉन टू मीट हिम देयर, एंड आई टोल्ड हिम कि इस तरह से जो फिल्म है, एंड भट्ट साहब इज यू नो एसोसिएटेड विद द फिल्म, एंड भट्ट साहब जो है प्रेजेंट करेंगे फिल्म को एंड ऑल. वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड ही read the script and everything, but unfortunately वो जो टेलीविजन जो कर रहा था वो बालाजी का था शायद वो टेलीविजन, बट इसमें इतना कमिटमेंट, इतना उसका जो था हैवी कि he couldn't you know leave that commitment, and he said कि हसन मेरा जो एंड का जो पोर्शन है वो आई थिंक कुछ 6 महीने या 3 महीने कुछ रह गए थे सीरियल के अंदर, एंड बोले इतना हैवी कमिटमेंट है बिकॉज आई कैन नॉट लीव दिस, बट इफ यू कैन डिले योर फिल्म बाय 6 months और समथिंग लाइक दैट देन आई कैन कंसिडर. So but that time हमारे जो producers वगैरह थे, भट्ट साहब थे, they were you know like we can't wait for 6 months because that was a long period of time. So then we had to move ahead. True. You've also been in the television industry. Yeah. आपने रज़िया सुल्तान, तू जी. आशिकी, नामकरण जी और इंटरनेट वाला लव. जी. तो कुछ बताना चाहेंगे अपना टीवी डायरेक्शन का एक्सपीरियंस के बारे में? See, टेलीविजन का कैसा है कि सिद्धार्थ जी जो है स्वास्तिक कंपनी जो है टेलीविजन की, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर है, जो उनका एक्सपर्टीज जो है माइथोलॉजी के अंदर है. एंड व्हेन आई वांटेड टू वेंचर इनटू टेलीविजन एंड ऑल, सो आई someone one of my friend introduced me to Siddharth ji, and I met him long back in around 2009 or 10 approximately, and उन्होंने मुझे बुलाया था, and उन्होंने बोला कि पूछा मुझे आपने क्या क्या किया है, एंड आई सेड क्या जस्ट माय फिल्म हैज रिलीज जशन, उसके पहले मैंने द ट्रेन किया, उसके पहले द किलर किया है, एंड ही सेड ओह दिस इज फ्रॉम भटकैम. बोला या सर आई एम बेसिकली फ्रॉम भटकैम ओनली, एंड ही टोल्ड मी कि आप टेलीविजन क्यों करना चाहते हैं, एंड आई टोल्ड हिम कि टेलीविजन अपना घर चलाती है, किचन चलाती है, एंड ही टोल्ड मी कि इसमें क्रिएटिविटी नहीं है. बोला सर मुझे तो दिखी नहीं क्रिएटिविटी, एंड ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, एंड ही सेड कि ठीक है मैं आपको मिलते हैं बाद में. देन आई केम डाउन रियलाइज कि यार ये मैंने गलत बोल दिया, मेरे को लगना बोलना नहीं चाहिए था ये. एनीवे बोल दिया मेरे दिल में, मैंने बोल दिया. एंड सडनली इन 2014, दैट इज आफ्टर 4 years, a call comes from Swastik, and they tell me कि this serial Razia Sultan, and would you like to direct? And I was little skeptical कि serial है यार, वापस कहाँ फंसूंगा ये serial में. I said yeah fine. So I said कि कहाँ, what is the production house and what details, and I asked that girl who was on the line, and she told me कि Swastik का है, and सिद्धार्थ जी ने बुलाया करके. Oh, I said, then I realized कि अच्छा. Then I asked him, that girl, कि no one in the industry has my number. Television industry people don't have my number because I'm not into television and all. Where did you find my number from? And she told me Siddharth ji gave me your number. So even after telling him that ये television जो है creative नहीं है, and he called me. Then after shooting, and when he realized, when I opened the show, पूरा setup हुआ show का, and one day show का जो है press release था,
एंड प्रेस वाले अंदर सबके बाइट्स वगैरह ले रहे थे, शो वो हो गया था, एक ड्रामा किया था उन्होंने, एंड आई वाज देयर एंड प्रेस वाले ने कुछ इंटरव्यू वगैरह लिया, एंड व्हेन आई केम आउट आई वाज जस्ट स्टैंडिंग अलोन विद अ कप ऑफ टी आउटसाइड द स्टूडियो एंड सिद्धार्थ जी केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ही टोल्ड मी, क्या डायरेक्टर साहब अब क्रिएटिविटी नजर आ रही है? एंड आई सेड यस सर, अभी इसमें क्रिएटिविटी है, बिकॉज दैट टाइम दैट change that happened because television people started using block lenses. First they used to use that Canon camera with that zoom lenses, which was that auto zoom with that motor. So from that they had a very big jump and they started using block lenses. So that was completely cinematic. So that gave a very cinematic feel of for that show, that historical show with the cinematic with block lenses and zoom lenses and all. So that way things happened. True. And you've also directed a Pakistani film and a Marathi film. Yeah. So how was it different from the other movies? See, Marathi film is as same as Hindi film. Only difference is कि खाली उनकी ज़बान अलग है, मराठी ज़बान है. And being a Mumbaiker, I am born and brought up in Mumbai. So I am very not very fluent in Marathi, but yeah, I can speak Marathi. And I can understand Marathi very well, and I've studied Marathi in school. I can read and write Marathi, so it was not that difficult to direct a Marathi film. And जो पाकिस्तानी फिल्म थी वो that was जो हमारे प्रोड्यूसर थे, जो किलर के जो थे, so he was a part producer with Mukesh ji in the Killer. So he wanted me to come there and direct a film for him. So that was how I gone to Pakistan to direct a film. Okay. और अभी अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड की बात की जाए जी, तो बॉक्स ऑफिस पर जो कोविड के बाद जी, या शायद सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जी, या एक लोगों का मे बी रवैया ही बदल गया है, या फिर that kind of spending capacity also. Because अगर आप multiplex theater जाते हैं तो at least with the family 5,000 rupees is what you generally end up spending when you watch a movie. So picture उस तरह से अभी चल नहीं रही है. ऐसे नहीं कि अच्छे pictures तो चलते हैं, जैसे we have seen with Allu Arjun, and हमने और भी मूवीज के बारे में देखा है, whether it was Gadar 2, पुष्पा है, पुष्पा 2 है, and then other movies also which were there. जी. तो आपको क्या लगता है कि लोग people have shifted their focus towards content driven cinema rather than superstars being cast in the movie? See, basically now in Bollywood there is scarcity of good storyline, good content, because everyone wants to make recycled things, recycled product. जो फिल्म्स जो आ रहे हैं वो आइदर सीक्वल्स आ रहे हैं, जो सीक्वल के सीक्वल बन रहे हैं, या अगर आप जो जिस स्टोरी लाइन पे काम कर रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है. सेकेंडली जो प्राइस है, जो आर्टिस्ट जो डिमांड कर रहे हैं प्राइस, और जो उनके रिटर्न्स है वो कहीं मैच नहीं हो रहे. सो उस वजह से जो है काफ़ी जो है जो फिल्म के जो बजट्स इन्फ्लेट होते हैं और अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट आता है तो वो जो फेल हो जाती है फिल्में. सो एक्चुअली द प्राइजेज हैव फेल्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने कहा कि जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा में जो लोगों ने टिकट जो है, जो एक फैमिली जाती है तो करीबन 5,000 रुपये जो खर्चा हो जाता है. एक्चुअली अगर हायर साइड ना भी पकड़ो आप तो एटलीस्ट 2-2,500 रुपये तो खर्चे हो ही जाता है. बट डू वी हैव दैट काइंड ऑफ कंटेंट टू शो द पब्लिक कि अगर एक आदमी अगर एक महीने की कमाई के अंदर से 2,500 रुपया निकाल के अगर वो देख रहा है फिल्म, तो इट इज़ दैट वर्थ दैट मनी. सो दैट कंटेंट जो है वही नहीं है तो आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करेगा ऑडियंस को कि आप आओ हमारी फिल्में देखो करके. एंड सेकेंडली जो सिनेमा ओनर्स है वो जो है जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम सिंगल स्क्रीन टू मल्टीप्लेक्स, सो टिकट प्राइसेस हैव जंप्ड. जो 50 रुपये की स्टॉल हुआ करती थी, 80 रुपये की बालकनी हुआ करती थी, और जो अपर बालकनी जो कुछ होती थी, जो ऊपर की सीट्स होती थी वो 100 रुपये की होती थी.
that directly jump from 500, 600, 800 rupees. So ये जो कुछ जगहों पे तो 1200-1500 भी है। हाँ वो तो अभी देखो वो तो लूट मची हुई ना। एंड साथ में पॉपकॉर्न 500-800 का बिक रहा है। वो तो लूट मची हुई, वो तो मतलब हाँ वो आपको जो मर्जी आप लगा लो। वैसा तो अभी उस जमाने में तो ऐसा था नहीं ना। अभी मैंने बहुत सारी हिट फिल्में देखी है जो थिएटर के अंदर जाके देखी है सिंगल स्क्रीन में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये शाहरुख खान साहब की फिल्म है या अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म है तो 80 रुपए से उन्होंने 200 रुपए टिकट कर दियो। वही है 50 रुपए की टिकट 50 रुपए में मिलती थी स्टॉल की, 80 रुपए की 80 रुपए में मिलती थी, अपर जो बैल्कनी की जो है 100 की 100 में मिलती थी। ऐसा तो था नहीं कि थिएटर ओनर ने सडनली बड़ी फिल्म आई, बड़ी स्टारकास्ट की आई, धर्मेंद्र साहब की आई या बच्चन साहब की आई या उस टाइम के जो अपने बड़े स्टार से जो, तो इवन फॉर सिंह राजा हिंदुस्तानी जो थी फिल्म या अपने दिलवाले दुल्हनिया, दोज आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। हम आपके कौन, मैंने प्यार किया, तो ऑल रीजनेबल प्राइस। ऐसा तो था नहीं कि स्टूडियो ओनर्स ने प्राइस बढ़ा के 400 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया कर दिया प्राइस। सो दोज वर द डिफरेंट डेज ओनली, बिकॉज उस टाइम पे फिल्म जो है टिकट का सेल जो है वो क्वांटिटी था उसमें। मतलब जो जैसे चंदन सिनेमा था, हम लोग उसको तबेला बोलते थे। 800 आदमी की कैपेसिटी का थिएटर था वो। और मैंने हम आपके कौन देखी है वो मैंने चंदन में देखी 800 आदमी के क्राउड के साथ। इट वाज लाइक वाओ, दिस इज सिनेमा, दिस इज मैजिक ऑफ सिल्वर स्क्रीन। 800 लोग साथ में चीयर कर रहे, रो रहे, हंस रहे, ताली बजा रहे। दैट वाज अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा था एक सिनेमा देखने का, एक मजा था उसका। आज आप मल्टीप्लेक्स में जाके देखो तो 200 की कैपेसिटी का मल्टीप्लेक्स होता है, उसमें भी 25 आदमी बैठे हुए होते हैं। आप लगा लो 500 रुपया 800 रुपया टिकट लगा लो, फिर भी आपके कलेक्शन क्या आएगा उसको? कुछ नहीं। और मूवीज भी वैसे वर्थ और मूवीज भी वर्क नहीं कर रही है नहीं, वर्थ ही नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ है ही नहीं, वर्थ भी नहीं है, वो कंटेंट ही नहीं है उसमें। सिर्फ सुपरस्टार्स डाल के पिक्चर थोड़ी चल जाएगी। सो अगर सुपरस्टार से खाली चलनी होती तो बहुत सारी फिल्में हैं जो सुपरस्टार्स की फ्लॉप हुई है। बिल्कुल वो नहीं होती है। एंड सेकेंडली जो है, जो स्टार्स जो है उन्होंने एक ऐसा अपने आगे पीछे एक फायर वॉल बना दिया है। फर्स्ट ऐसा था, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो थे उनको एक एक्सेस था स्टार से मिलना, कि कहीं भी शूटिंग पे चले गए तो स्टार से बड़े जो हमने मिल लिया है, अनु कर लिया, ये कर लिया, अरे सर एक स्क्रिप्ट है, कमाल का आइडिया ये है, जस्ट लिसन, अच्छा क्या आइडिया है पता, सर ये आइडिया कमाल है, बनाते यार, ये कुछ सोच कर लग के ला, कुछ करके ला, देखते इस पर कुछ बनाते, कुछ करते हैं। आज के डेट में तो ऐसा फायर वॉल है वो कॉर्पोरेट का और उसका जो एजेंसीज का, कि आपकी स्क्रिप्ट पहुंच ही नहीं पाती। वो नीचे के लेवल के जो लोग हैं वही पढ़ के रिजेक्ट कर देते कि नहीं ये नहीं चलेगा करके। अरे हुआ यू टू डिसाइड, तुम एक्टिंग करने वाले हो क्या उसमें? तो हुआ यू टू डिसाइड कि ये चलेगी ये नहीं चलेगी, नहीं ये फलाना स्टार ये पिक्चर करेगा ये नहीं करेगा ये पिक्चर। सो उन्होंने ऐसा एक दीवार खड़ी कर दी है ना कि हम वो दीवार को लांग के जा ही नहीं पा रहे उस साइड पे। सो अभी वेब सीरीज ओटीटी भी आ गई है जी, तो उसमें भी शायद आपने काम किया है जी। तो मे बी दिस माइट बी द फ्यूचर, और See, this is an alternative cinema which is has opened up. And आपने जैसा कहा कोविड में लोगों ने 2 साल घर में बैठ के इसकी आदत लगा ली कि अब भाई हम हमारे घर में बैठ के देखेंगे, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे। अगर हम 500 रुपये की टिकट खरीदते हैं, अगर मैं ये सब्सक्रिप्शन ले लूँ 500 रुपये का, तो ये मैं पूरा महीना देख सकता हूँ, वो भी हाई UHD क्वालिटी के अंदर या HD क्वालिटी के अंदर 4K या 4K क्वालिटी के अंदर। सो मेरे को तो वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल ही रहा है। अच्छा, सेकेंडली जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप जो है 500 रुपये देख के आप 2 घंटे की पिक्चर देखते हो, यहाँ 500 रुपये देख के आप पूरा महीना भी देखते हो, और एक एक कंटेंट जो है 10-10 घंटे का कंटेंट है, एंड इट इज़ इक्वली इंटरेस्टिंग, कंप्लीटली डिफरेंट, और हर तरह का उसमें जो है आपको मतलब एक बुके मिलता है जिसमें आपको कॉमेडी भी मिल जाता है, हॉरर भी मिल जाता है, एक्शन भी मिल जाता है, थ्रिल्स भी मिल जाता है, मतलब हर तरह का आपको जो फ्लेवर जॉनर जो है सिनेमा का वो आपको एक ही सेट टॉप बॉक्स में मिल जाता है देखने के लिए। पूरा एक टीवी जो है उसमें आपको हर तरह का मिल गया देखने के लिए एंटरटेनमेंट। सो व्हाई वुड पीपल गो? एंड जब जो लोग सुनते हैं कि इस पिक्चर की या उस पिक्चर की जो भी फलाना जो बड़ी मल्टी स्टार कास्ट जो बड़ी पिक्चर उसकी रिपोर्ट खराब आती है, तो पीपल देन कम बैक, नहीं अभी नहीं देखना यार, 500 रुपये देखे अभी 1 महीने में आ जाएगी नेटफ्लिक्स में देख लेंगे।
हमने सब्सक्रिप्शन तो भरा है ना, देख लेंगे। या तो मैक्सिमम क्या होगा, 99 रुपीज़ भर के उसको जो एक्सक्लूसिव जो होता है उसमें देख लेंगे। सो ये जो आने से है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जो इंटरनेट वगैरह जो खुला हुआ है, इसके अंदर जो अपना जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे काफ़ी चीज़ें बदलाव आएगा उसमें। इनफैक्ट वो दौर भी बदल गया जो नेहा धूपिया ने कहा था कि आइदर सेक्स सेल्स और शाहरुख खान, तो दोनों में से शायद आज दोनों को तकलीफ हो रही है। नहीं यार, नहीं, आज दोनों ही बिक रहे हैं। शाहरुख साहब तो बिक ही रहे हैं, शाहरुख साहब का तो कोई तोड़ नहीं है, किंग खान है शाहरुख साहब। एंड सेक्स भी बिक रहा है। सेक्स अगर सेक्स में along with the horror genre, सेक्स अभी क्या हो गया, सेक्स आलू की तरह हो गया है। वो आलू जो है आप भेल में भी डाल दो, आप सेवपुरी में भी डाल दो, आप उसकी मसाला वाले आलू भी बना लो या रोटी के साथ भी खा लो। तो वो सेक्स क्या है, उन्होंने हॉरर में भी डाल दिया, सेक्स कॉमेडी में भी डाल दिया, सेक्स आपका थ्रिलर में भी डाल दिया। तो आलू की तरह बन गया है सेक्स। वो किसी भी जॉनर की आप पिक्चर बनाओ, किसी भी जॉनर को कुछ भी बनाओ, उसमें ये आलू डाल दो आप, तो वो एक मसालेदार चटपटा इंग्रेडिएंट बन जाता है। तो बेसिकली ये जो है ज़्यादातर जो ये हो रहा है वो ये आपका OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है मोस्टली। तो आपके आने वाली प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले जो प्रोजेक्ट्स एक दो है वो लाइंड अप है, जो फिल्म की है बातें चल रही है, बट इट्स टू अर्ली टू डिस्क्लोज नाउ बिकॉज सर्टेन थिंग्स आर अंडर पाइपलाइन। And any dream project or any mega project that you probably desire to work on, और इस तरह का सिनेमा आप शायद बनाना चाहेंगे या इस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहेंगे, anything that you have in mind, क्योंकि शायद वो ऑडियंस को भी उस तरह का सिनेमा देखना है जो शायद आपके मतलब आपके डायरेक्शन से या आपके एक्सपर्टाइज से लोगों को उस तरह का एक्सपीरियंस मिले। See, cinema जो there is no particular genre of cinema which I would like to make, but yeah, definitely जो भी cinema I make or I'm making, I try to make it larger than life. चाहे वो framing हो या story का content हो उसमें, या lighting wise हो या उसका story telling हो, so always I would keep in mind that I have to make it larger than life because cinema is larger than life. It is not जो इतना छोटा ये है इसमें कुछ दिखा दो करके। सिनेमा हैज टू बी लार्जर देन लाइफ बिकॉज ऑलवेज जो मैंने जो सिनेमा जो मैंने देखा है, जो हम देखते आ रहे हैं, जो इवन हॉलीवुड का जो देखते आ रहे हैं, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया आप देख लीजिए, इंडियाना जोन्स देख लीजिए, दीज आर लार्जर देन लाइफ सिनेमा। सो आई वुड लव टू मेक दोज काइंड ऑफ सिनेमा विच आर लार्जर देन लाइफ। एंड मतलब खुले तो ऐसा लगे कि यार 70 mm कोई फ्रेम खुला ऐसा। So that is the grandeur of cinema. See, अभी आजकल जो मैं देख रहा हूँ जो सिनेमा में, हो सकता है ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन जो ग्रैंडियर जो है सिनेमा, जो ग्रैंडियर पूरा ख़त्म हो गया, वो ग्रैंडियर रहा नहीं। अभी जो है वो सिनेमा जो है बहुत ही कंसाइज हो गया है। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे to the audience and even maybe for Frontline World News and the audience who are your fans and looking forward to your kind of cinema, और जिस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे फॉर सिनेमा बफ्स या जो लोग देखना चाहते हैं जी उस तरह, जैसे आपने बात की लार्जर देन लाइफ सिनेमा जी, तो कुछ इस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? सी मैसेज तो ऐसा कुछ है नहीं बिकॉज आजकल जो लोग कोई सिखाता है तो लोग सुनना चाहते नहीं बेसिकली। और लेकिन बट एक चीज़ मैं कहूँगा, जो ये रिसेंटली जो रिलीज़ हुई सिकंदर, जो सलमान खान साहब की जो पिक्चर रिलीज़ हुई, उसका बहुत सारा न्यूज़ निकला कि वो फिल्म जो है पायरेटेड हो गई, और ऑन रिलीज़ और बिफोर रिलीज़ या ड्यूरिंग रिलीज़ जो है वो फिल्म जो है इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही थी, मोबाइल्स पर सर्कुलेट हो रही थी। सो आई वुड लाइक टू tell our audiences and my viewers and my fans and कि ये प्लीज़ आप डिस्करेज करिए, बिकॉज क्या होता है कि जो एक फिल्म बनती है बहुत ही मेहनत से बनती है, बहुत लगन से बनती है, और बहुत सारे लोगों का जो है इसमें खून पसीना इसमें होता है। एक फिल्म सेट के ऊपर कम से कम जो नॉर्मल जो फिल्म होती है जो मीडियम बजट की, उसमें कम से कम 200-250 आदमी होते हैं। सलमान खान साहब जैसी फिल्मों का जो बजट होता है, जो रेंज होता है, उसमें कम से कम 500 आदमी काम करते हैं।
सो इतने लोगों का परिवार चलता है, इतने लोगों का जो है एक मेहनत लगी होती है, एंड दीज फिल्म्स आर मेंट टू बी सीन ऑन अ बिग स्क्रीन. दीज फिल्म्स आर नॉट मेंट टू बी सीन ऑन अ मोबाइल फोन. सो अगर आपने पायरेसी आपके पास आ भी गई है तो प्लीज अवॉइड सीइंग इट, बिकॉज क्या दिस विल ओनली एनकरेज द पायरेट्स टू डू मोर एंड मोर पायरेसी. So I'll request my audience to please refrain from seeing pirated stuff. And अगर आप जितना जो है सिनेमा में जाओगे उतना ही सिनेमा बढ़े, बिकॉज आपने अगर सिनेमा हॉल में आना बंद ही कर दिया तो हम फिल्में किसके लिए बनाएंगे. सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाइए सिनेमा में, आप देखिए. आप जाना शुरू करेंगे और जैसे क्राउड अंदर आना शुरू करेंगे तो हमारे प्रोड्यूसरों को भी हिम्मत आएगी कि नहीं, लोग आ रहे हैं देखने के लिए. सो देन दे विल बी lot more productions of film than it is. Ticket prices might drop. Prices might drop. And single screen theaters बढ़ जाएंगे. And they might be producers who come into this industry कि नहीं हमको बनानी है फिल्म. आज के डेट में प्रोड्यूसर्स सब जो है सिंगल जो प्रोड्यूसर्स थे, कॉर्पोरेट्स जो है वो है, लेकिन जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है वो दे आर डाइंग. सो उनको हिम्मत आ जाएगी कि नहीं ऑडियंस आ रहे हैं और हमको जो है वो बनानी है फिल्म. इवन आई विल रिक्वेस्ट टू द सिनेमा ओनर्स कि अगर जो मल्टीप्लेक्स चेन जिसके पास है कि आप जो सिंगल जो प्रोड्यूसर्स जो हैं या छोटे प्रोड्यूसर्स है या जो छोटे डायरेक्टर्स है या जो छोटी फिल्में बनती है जिसका बजट 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के अंदर जो होती है फिल्में, आप उनको एनकरेज करो, उसको शो टाइम दो. उनको जो है कुछ नहीं तो करीबन 1-2 शोज जो है वो प्राइम स्लॉट में दीजिए, ताकि अगर ऑडियंस उसके पास आएगी तो वो उनको हिम्मत आएगी, वो आगे बनाएंगे. लेकिन अगर आप ऐसे शोज देंगे जो सुबह 11 बजे के हो, शाम को 4 बजे के हो, जहां ऑडियंस ही नहीं है और जहां पर पता चला 200 आदमी की कैपेसिटी के अंदर 5 आदमी बैठे हुए और शो कैंसिल हो रहे हैं या 10 आदमी बैठे हुए, तो ये तो मर जाएंगे. ये यू विल किल दिस इंडस्ट्री. So thank you so much for your valuable time, and looking forward to your movies in the near future. Thank you. And wish you all the best. Thank you so much. So this was the great Hasnain Hyderabadwala, with whom we had this invaluable interview, and we look forward to his kind of cinema in the near future. Thank you.